our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Mato ohaleka Yakub miskonateka Israel. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We are going into the word of God today. अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। The topic for discussion is El Shaddai. और आज का जो मनन का विषय है वह है एल शडाई। Let us turn our Bible to Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति का 17 का 1 हम लेंगे। In this God reveals himself as El Shaddai. और इसमें परमेश्वर अपने आप को एल शडाई के रूप में प्रकट करते हैं। Now when you read it in English or Hindi or any language, और जब आप उसे अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ते हैं या किसी और भाषा में, it is translated as Almighty God. और वहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे अनुवाद किया गया है। Let us read Genesis chapter 17 verse 1. और उत्पत्ति का 17 उसका 1 हम पढ़ेंगे। Yes. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। It is translated as I am Almighty God. और यहाँ पर यूं लिखा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। But what is the meaning of El Shaddai? लेकिन एल शडाई का मतलब क्या है? El means God. एल का मतलब है परमेश्वर। Shaddai means breastfeeder. और शडाई का मतलब है जो स्तनों से पोषण देने वाला। I provide whatever you need. I provide whatever you need. और मैं वह पूरी करता हूँ तुम्हारी हर जरूरत को। Now what does a child need? एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? Milk. उसे दूध चाहिए। Breakfast or lunch or dinner or whatever it is, the child needs milk. नाश्ते का समय हो या दोपहर के समय या रात का खाना, सब समय उसे सिर्फ दूध ही चाहिए। So God says, I am the breastfeeder. परमेश्वर कहते मैं स्तनों से पोषण करने वाला हूँ। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? I take care of every need. मैं हर जरूरत को मैं संभालता हूँ। Now this understanding one person should get first. और इस समझ को हर एक को पाना है। But unfortunately much of the times how we think, लेकिन कई बार ये बहुत ही दुख की बात है कि हम कैसा सोचते हैं। now we have been always told, हमें हमेशा ये बताया गया, are you like Peter? क्या तुम पतरस के समान हो? Peter drowned when the sea waves came. और जब लहरें आई तो पतरस उसमें डूबना शुरू हो गया। Thomas was doubting. और थोमा ने भी शक किया था। You are doubting like Thomas. तुम भी थोमा के समान तुम शक करते हो। Judas denied Jesus. और जुडास ने भी इनकार किया था यीशु मसीह से। So much of the times we keep comparing ourselves with people. कई बार हम लोगों से अपनी तुलना करते हैं। But today morning God is telling you, लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपसे कहते हैं, stop comparing yourself with people. लोगों से अपनी तुलना करना बंद करो। Understand who I am. ये समझो कि मैं कौन हूँ। When you understand He is El Shaddai, और जब आप समझ जाते हैं कि वह एल शडाई हैं, there is no need for you to worry about anything in the world. किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं आपको। If you don't have money in the purse, अगर आपके बटुए में पैसे नहीं हैं, you need not worry. तुम्हें चिंता नहीं करनी। You are not feeling well today, अगर आज आपकी तबीयत कुछ ढीली है, you need not worry. तुम्हें चिंता नहीं करनी। Now, yesterday I heard that the heat is very heavy in North India. और कल मैंने ये सुना कि उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। In Delhi, it has crossed 52 degrees. और दिल्ली में 52 डिग्री तक जा चुका है। In some place we have heard that because they have put the AC continuously, AC will burst. और कई जगह में एसी निरंतर चलने के कारण वह ऐसे अचानक से जल गया है। Now one
one family which has gone in the car, और एक परिवार जो गाड़ी में जा रहा था they have put petrol in a diesel car. और डीजल गाड़ी में उन्होंने पेट्रोल को डाल दिया, But when that car, when it went in the road, लेकिन जब वह गाड़ी सड़क पर चलने लगी suddenly it caught fire. अचानक उसमें आग लग गई That family was burnt. और वो परिवार जल गया। So many things are happening around the world. इतनी चीजें हो रही है पूरे संसार में। If you understand El Shaddai, अगर आप एल शडाई को समझ पाएंगे, oh, that will happen to me, that thought will not come. अब क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है? कभी ऐसी बात नहीं आएगी मन में। Whatever happens in the world, संसार में जो कुछ भी हो सकता है, you will be confident that will not happen to और you. आपको ये विश्वास होगा कि आपके पास कुछ नहीं आ सकता। If something has to happen to me, अगर मेरे साथ कुछ होना है, it needs to take the permission of God before it happens. परमेश्वर की अनुमति को लेना पड़ेगा मेरे पास आने से पहले। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर की संतान, in your life and my life, आपके जीवन में और मेरे जीवन में there is nothing called accident or coincidence. और ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बात ऐसी अचानक हो जाती है। It is planned by God. परमेश्वर से योजना की गई घटना ही होती है। Your day is been very carefully planned by God. और तुम्हारे दिन की योजना परमेश्वर बहुत ही सावधानी से करते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to John chapter 8 verse 39. यूहन्ना का 8 उसका 39 पद हम लेंगे। Yes. उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। What was Abraham's thought and the way he worked? और अब्राहम की सोच कैसे थी और वह किस प्रकार काम करते थे? Abraham believed in God. अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। We all know that. हम सब जानते हैं। Now God is expecting something. परमेश्वर किसी बात की अपेक्षा करते हैं। Behave like Abraham. अब्राहम के समान तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। Now we are saying we are believers. हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, Most of the time that belief is gone away from our life. लेकिन कई बार हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं दिखाई पड़ता। All our belief is when everything is all right, we will be having belief. और जब सब बातें सही भांति से होती हैं, तभी हमारा विश्वास ऊपर होता है। But if something is little tense, लेकिन अगर कोई भी जरा सा भी तनाव हो जाए, now we are not confident. हमारा विश्वास कम हो जाता है। Will it happen? क्या होता है ये? क्या Will होगा it never ये? happen? और ये क्या कभी नहीं होगा? I don't know whether I will be able to do it. मैं नहीं जानता क्या मैं इसे कर पाऊंगा। Totally confused. पूरी तरह से असमंजता। We cannot, now some people cannot take decision in their life. कुछ लोग अपने जीवन में निर्णय ही नहीं ले पाते। Will you come for the prayer? क्या तुम प्रार्थना के लिए आओगे? Will you come for this meeting? क्या इस मीटिंग के लिए आओगे? Now the answer what we get. और उसका उत्तर हमें ये मिलता है, If I am free, I will come. अगर मुझे समय हुआ तो मैं आऊंगा। What do you mean? If you are free, you will come. इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास समय हुआ तो आओगे? Don't you think the matter what we are discussing is worth you making yourself free? और क्या जो हम कह रहे हैं, क्या उसका इतना भी मूल्य नहीं कि तुम अपने आप को, अपना समय उसके लिए नियुक्त करो? Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now today we are going to understand the God El Shaddai. आज हम इस परमेश्वर एल शडाई को हम पहचानेंगे, उन्हें और भी अच्छे से जानेंगे। So stop looking at preachers. इसलिए प्रचारकों की ओर देखना बंद Stop करो looking at pastors, evangelists. और पादरियों, इवेंजलिस्ट की तरफ देखना बंद करो। Stop looking at your fellow brothers and sisters. अपने भाई बहनों की तरफ देखना बंद करो। Start looking at El Shaddai. एल शडाई की ओर अपनी आंखों को टिकाओ। When you start looking at God, और जब आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते your हैं, faith is going to increase. तुम्हारा विश्वास और भी बढ़ेगा Your confidence is going to और increase. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Genesis chapter 12 is a very famous chapter. और
उत्पत्ति का 12 अध्याय जो है बहुत ही मशहूर है। And God calls Abraham. परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं। In the book of Joshua chapter 24, यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय में it says that Abraham was from the land of rivers. और ये लिखा है कि अब्राहम उन नदियों के देश से था। Which Nadia? और कौन सी नदियां? Now that rivers means Euphrates and Tigris. और उन नदियों के नाम है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। So that rivers was giving fresh water. और ये बहुत ही ताजा जल देती थी। So Abraham was from a place called Baghdad. और अब्राहम एक ऐसे स्थान से था जिसका नाम था बागदाद। Now you know, if you put Baghdad, it will come, it is the capital of Iraq. और आप जानते हैं ये बागदाद जो है इराक की राजधानी है। Now, but 10-20 years before, you would have heard a name Saddam Hussein. और 10-20 वर्ष पहले आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। So he was ruling Iraq. और वह इराक में शासन कर रहा था। Exactly the same place Abraham came. उसी स्थान से अब्राहम आए। So the Garden of Eden is stretching from Ur in Baghdad. और जो ईडन की वाटिका है वह बागदाद के ऊर से लेकर It is very, Baghdad and Ur are very near. बागदाद और ऊर बहुत समीप हैं। So from Ur to Cairo is the Garden of Eden. I have told you many times. कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऊर से लेके कायरो तक ईडन की वाटिका थी। But the center of the garden, लेकिन उसका जो मध्य स्थल है, the center of the garden is Israel. और वो जो वाटिका का मध्य स्थान है वह है इस्राएल। So now there are 3 languages which is there in this whole Garden of Eden place. और ये ईडन की वाटिका में पूरी तरह से 3 भाषाएं हैं। In the north, उत्तर में there is Aramaic which is spoken. और अरामी भाषा बोली जाती है। In the center, मध्य में it is Hebrew. वह है इब्रानी। And in the south, और दक्षिण में it is Arabic. वह अरबिक। Now Aramaic and Hebrew are both are like sister languages. और ये जो अरामी और इब्रानी है ये जैसे एक समान, जैसे बहनों के समान ये भाषाएं हैं। So all 3 are more or less like the same language. और तीनों भाषाएं बहुत आपस में मिलती जुलती हैं। Now you know they are killing each other. आप जानते हैं वो एक दूसरे को घात कर रहे हैं। They are cousins. और वे चचेरे भाई हैं। So they are cousins. They are killing. Even today they are killing each और other. आज भी वो आपस में युद्ध करके अपने आप को घात कर रहे हैं। They are Ishmaelites, Esau and Jacob. वे हैं इश्माइली लोग, ईसा और याकूब। These 3 groups. ये 3 समूह। These 3 groups are killing each other और now. ये 3 समूह आपस में लड़ाई करके एक दूसरे का घात कर रहे हैं। But everybody is making a big deal. Oh, my language only is great language. लेकिन सब लोग यही मानते हैं कि मेरी भाषा ही सबसे उत्तम है। But the Lord of Abraham, लेकिन अब्राहम के परमेश्वर El Shaddai, एल शडाई, he spoke Hebrew. उन्होंने इब्रानी भाषा ही बोली। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us have a clarity who are the people in the world. और हमें ये स्पष्ट जानना चाहिए कि संसार में कौन लोग हैं। Now we need not bother about the time when it was before the flood. और ये हमें नहीं सोचना कि क्या बाढ़ के पहले, जल प्रलय के पहले Who was living where? कौन कहाँ पे जी रहा था। Now don't get confused with that. और उन बातों को लेकर मन में असमंज मत डालिए। In the BBS course I have explained that very clearly who was where before the flood. और जल प्रलय के पहले कौन कहाँ था मैंने बीबीएस कक्षा में समझाया है। But after the flood, लेकिन जल प्रलय के बाद now get this very very clear in your mind. बहुत ही स्पष्ट मन में समझ लीजिए। How many children for Noah? नूह के कितने पुत्र थे? Ham, Shem, Japheth. हाम, शेम और याफेत। 3 children. 3 बच्चे। So I will tell you where these people were living. अब मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ कहाँ बसे थे। Shem. शेम,
They are called Shemites. उन्हें शमाइट शेमी कहा जाता है। They were living in Jerusalem. यरूशलेम में रह रहे थे From there you have to go towards the east. और यरूशलेम से पूर्वी ओर जब आप देखते हैं, Now if you have known about a place called Philippines, और अगर फिलीपींस नाम आपने सुना है, now there in Philippines there is a place called Manila. फिलीपाइंस में एक जगह है जिसका नाम है मनीला। From Jerusalem यरूशलेम से लेकर till Manila, मनीला तक that is Shem. वह है शेम। Is it clear? क्या आप समझ गए? First thing we should be clear. पहले हमें स्पष्ट समझना है। Number 2, दूसरा, Japheth. याफेत। Japheth is a person who lived in Europe. और याफेत वो मनुष्य जो यूरोपिया में जाके बसा। Now thirdly, तीसरा, Ham. हाम, He was living in Israel और वह इसराइल में जी रहे थे। and then down towards the continent of Africa. वहां से नीचे अफ्रीका तक गए वो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So now I have given these 3 children how they spread over towards the world. और ये 3 बच्चे कैसे संसार में किस दिशा में फैले मैंने आपको बताया। Now America and all came much later. अमेरिका सब तो बहुत बाद आया था This is the picture of the world now. और यही अभी संसार का चित्र है। Now when you imagine God, अगर आप परमेश्वर के आप कल्पना करके देखते हैं, don't imagine a Western God. आप एक पश्चिमी परमेश्वर को मन में मत लाइए। Today how God is projected, God was not like that. It is not like that before. और जैसे आजकल हमें बताया या प्रकट किया जाता है, परमेश्वर वैसे नहीं थे। God whom we serve is a very, very Orient God. और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह प्राचीन काल के हैं। The God of Abraham, Isaac, Jacob. और अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, He is not a Jewish God. वह एक यहूदी ईश्वर नहीं है। He is a God of faith. वह एक विश्वास के परमेश्वर हैं। If you believe, अगर आप विश्वास करें, I repeat, if you believe, अगर आप विश्वास करें, I repeat, if you believe और फिर से दोहराता हूँ, अगर आप विश्वास करें that God is going to do miracles and transform your life, और वह परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे और तुम्हारा जीवन परिवर्तित करेंगे। glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So today in the beginning of the message I told you, आज मैंने प्रचार के शुरुआत में आपसे कहा, it is our time to understand God. ये समय है कि हम अपने परमेश्वर को पहचानें। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now Genesis chapter 18 verse 1. उत्पत्ति का 18 का 1, The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now the Lord is appearing to Abraham. परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट होते हैं। So the first question is coming. पहला सवाल आ रहा है, Appearing means how? अगर प्रकट हुए तो कैसे? Is he coming as a person? क्या वह मनुष्य के रूप में आते हैं? Is he coming as a spirit? क्या वह आत्मा में आते हैं? How? कैसे? Now, who gives the answer for this? और इसके लिए कौन उत्तर देता है? Paul in the New Testament gives answer for this. और पौलुस नए नियम में इसका उत्तर देते हैं। The book of Colossians, कोलोसियों की पुस्तक, chapter 1 verse 15 to 20. उसका पहला अध्याय, उसका 15 से 20। But if you read 15 itself, we have a very, very clear picture. जब 15वां पद पढ़ेंगे तभी आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। The Son is the image of the invisible God. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। The firstborn over all creation. सारी सृष्टि में पहलौठा है। Now you want to read that in Hindi? या Yes. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, Continue. क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी,
क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How to understand El Shaddai? कैसे अल शदाई को हम समझें? Firstly, पहला, he is the Son is the image of invisible God. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। So when Abraham is sitting near Mamre, और जब अब्राहम मामरे के पास बैठे हैं, there was somebody walking and coming to Abraham. कोई चलकर उनकी ओर आ रहा था। Who is the image of God? कौन है उनका प्रतिरूप? The Son. वह पुत्र। So who is the Son? तो पुत्र कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। So now I want somebody to tell me अब मैं चाहता हूँ कोई मुझे बताए, who walked and came to Abraham. कौन चलकर अब्राहम के करीब आया? Raise your hands. अपना हाथ उठाइए। If you know the answer, please raise the hand. अगर आप उत्तर जानते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाइए। I see Sister Rashmi is raising the hand. You have to unmute and say yes. Jesus came to Abraham. It is Jesus Christ who came to Abraham. Thank you, sister. यीशु मसीह थे जो अब्राहम के पास आए थे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, literally Yeshua was the person who walked and came to Abraham. और यीशु वह ही थे जो चलकर अब्राहम के पास आए। So Abraham was seeing Jesus Christ. अब्राहम यीशु मसीह को देख रहे थे। He can reveal himself. और वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। Father is in spirit. पिता आत्मा में है Holy Spirit is spirit. और पवित्र आत्मा भी आत्मा में है। If you want an image, अगर आप कोई रूप चाहते हैं, we have not seen. हमने नहीं देखा, Abraham saw. अब्राहम ने देखा। It was the Yeshua who came to Abraham. और यीशुआ थे जो अब्राहम के पास आए थे। Now, if you say, I want to understand the Lord, अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, what type of God is our Lord? किस प्रकार के परमेश्वर है हमारे प्रभु, How I can understand El Shaddai? मैं कैसे अल शदाई को समझ पाऊँ? Open your eyes and look the world. अपनी आँखों को खोलकर संसार की ओर देखो। Colossians 1:15 to 20 says, और कोलोसियों का 1 उसका 15 के 20 में लिखा है, everything was created for him, in him, by him. और सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई थी उनके लिए और उनके द्वारा ही। So everything is created by him means, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। इसका मतलब, if you open your eyes and see those things, अगर आप अपनी आँखों को खोलकर उन चीजों की ओर आप देखेंगे, you will be able to understand that there is a creator, he is God. आप समझ पाएंगे कि एक सृष्टि करता है और वह है परमेश्वर। I was recently thinking, और मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, because I go out to buy bread or fruits or something for my family. और मैं अपने परिवार के लिए कुछ खरीदारी करने जाता हूँ बाहर। So I am amused by the way how God has created fruits. और कैसे परमेश्वर ने फलों को बनाया, उसे देखकर मैं अचंभित हो जाता हूँ। Now there will be continuously grapes coming, और अंगूर निरंतर आते हैं, and grapes coming. आते रहते हैं अंगूर। And suddenly grapes, I go and ask the shop, grapes, नहीं सर सीजन खत्म हो गया। और अचानक एक दिन वो बोलते हैं कि नहीं, अभी इसका मौसम नहीं है अंगूरों का। Now suddenly at that time, this तरबूज is coming. और अचानक Watermelon.
तरबूज उस समय शुरू हो जाता है उसका मौसम। I used to think about this. और मैं सोचता था इसके विषय में, So much heat is there outside, बाहर इतनी गर्मी है, and when so much heat is there, और जब इतनी गर्मी है, you have a few pieces of watermelon. अगर आप तरबूज के कुछ टुकड़े खा लेंगे, It is like drinking water. और ऐसा जैसे आप पानी को पी रहे हैं, One piece of watermelon, if you have so much water is going और inside. एक टुकड़ा आप तरबूज का खाएंगे, उसका इतना पानी आपके अंदर जाता है। Who created this, Baba? किसने बनाया इसको? Correctly at the time when the heat is there. और उसी समय जब गर्मी का मौसम है। Now, I used to sit and think all these things. और मैं बैठकर इन सब पर बहुत ध्यान I don't know whether you are thinking. मैं नहीं जानता कि आप सोचते हैं या One नहीं। fruit is going away, another fruit is coming. एक फल जाता है, दूसरा आता है अंदर, So, mango is coming. और आम आते हैं, Then mango season is going. और फिर आम का मौसम खत्म, Then lychee is coming. और फिर लीचियां आती हैं। So, when I think all this, और जब इन सब के विषय में मैं सोचता हूँ, there is definitely a God. एक परमेश्वर है जरूर, That is what inside it is coming in my heart. और वही मेरे हृदय में आ रहा था। Now, what God says, परमेश्वर क्या कहते हैं? you want to understand me? तुम मुझे समझना चाहते हो? You want to understand me? आप समझना चाहते हो मुझे? Go out. बाहर जाकर देखो, Look at the birds. उन पक्षियों की ओर देखो, Look at the stars, sun, moon. और नक्षत्र, सूर्य, चांद, इन सब को देखो। I saw the creation. मैंने सृष्टि को देखा, I saw the creation of God. और मैंने परमेश्वर की सृष्टि की ओर I देखा, saw the fruits and all the things which is there. और सब फलों को और सब चीजों को जो उन्होंने बनाया है, No, nobody could have done it accidentally. और कोई भी उसे ऐसे ही नहीं बना सकता था। Yesterday when I was before I was giving the Parsha study, और कल पार्शा स्टडी मनन करने से पहले I was looking at some statements. और कुछ वाक्यों की ओर मैं देख रहा था। God was talking about Jubilee. परमेश्वर जुबिली के विषय में कह रहे थे। Now that Jubilee is the 50th year. और वह जुबली 50वां वर्ष होता है, 49th year is Shemitah. और जो 49वां वर्ष होता है वह है शेमिटा, And before that one year, 48th year, और जो 48वां वर्ष होता है उसके पहले, on that year, whatever crops is coming, और उस वर्ष में जितनी भी फसल आती है it will be sufficient for you for the next 3 years. वह अगले 3 वर्ष आपको पोषण करने के लिए काफी होती है। If you are writing a book, अगर आप एक पुस्तक लिख रहे हैं, will you take this risk? क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे? Can anybody say this year harvest will be sufficient for next 2 years? और इस साल जो फसल आएगी अगले 2 वर्ष के लिए काफी रहेगी? No, you and me cannot take this risk. आप और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। What a wonderful prophecy. कितनी सुंदर भविष्यवाणी है ये। Now every statement in the Bible is in the Torah is a prophecy. और हर एक वाक्य जो तोरा में है एक भविष्यवाणी है, वो So filled with prophecy. उस भविष्यवाणियों से भरा है। So God says, I am going to provide for you future. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे भविष्य के लिए मैं दूंगा तुम्हें। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, when we don't have anything in the purse, जब हमारे बटुए में कुछ नहीं होता, still you can trust God. तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। How many of you want to say amen? आप में से कितने लोग आमीन कहना चाहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Don't look at people now. आप लोगों की तरफ मत देखिए। Now when you look at people, maybe you get disappointed. और जब आप लोगों की तरफ देखें तो शायद आप निराश हो सकते हैं। Today we are going to understand El Shaddai. आज हम एल शदाई को समझेंगे। He says, I will take care of you. वह कहते हैं मैं तुम्हें संभाल लूंगा, Everything I take care of you. सब कुछ मैं देख लूंगा। If you say I don't have anything in the purse, अगर आप कहते हैं कि मेरे बटुए में आज कुछ नहीं है, God says I am with you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। You are thinking how this problem will solve. आप सोचते हैं कैसे ये समस्या का हल मिलेगा। God says I am with you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे संग हूँ। Now Abraham was asking God, अब्राहम परमेश्वर से पूछ रहे थे, God, can you please tell me who are you? क्या आप मुझे कह सकते हैं कि आप कौन हैं? Please tell me. बताइए मुझे। Can you please reveal yourself? क्या अपने आप को आप प्रकट करेंगे? I want to know who are you. मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। God says, परमेश्वर कहते हैं, no, Abraham was living in tent.
और अब्राहम तंबुओं में जीते थे। Can you go out, Mr. Abraham? कहा, Abram. अब्राहम क्या तुम अपने तंबू से बाहर जाओगे? Sorry, Abram. अब्राम Abram, अब्राम can you go out of the tent? क्या तुम बाहर जाओगे तंबू से? He says, yes, Lord, I will go out. कहा कि हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। What was Abraham having? अब्राहम के पास क्या था? Lot of cattle. बहुत सी भेड़, Camel, sheep, ऊंट, donkey, everything was there. ऊंट, गधे, भेड़, बकरियां बहुत सी। So the little one was drinking milk from the mother. और वो देख रहे थे कि जो मेमना वह अपनी माँ से दूध पी रहा है। So God asked Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, what are you seeing? तुम क्या देखते हो? He says, I am seeing the little one drinking milk from the mother. और मैं देख रहा हूँ कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। The little one wanted anything more? क्या उस बच्चे को कोई और आवश्यकता थी? Abraham said, no, no, no. अब्राहम ने nothing. कहा नहीं, Everything is clear. सब कुछ सही है, Everything is स्पष्ट sufficient. और सब काफी है। Abraham says, everything is sufficient. अब्राहम कहते हैं हाँ सब कुछ काफी है उसके लिए। God says, I am there. परमेश्वर कहते हैं मैं वही हूँ जो देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you believe in the God of Abraham, अगर आप अब्राहम के परमेश्वर में विश्वास करेंगे, he says, I am everything. वह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ और पर्याप्त हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, are you thinking there is a sickness in the family, I need healing? क्या आप सोचते हैं कि परिवार में कोई बीमारी है, मुझे चंगाई चाहिए? Are you thinking there is a problem which is running with our relatives? हमारे रिश्तेदारों के साथ कोई समस्या चल रही है? Are you thinking there is a shortage of some funds? क्या आप सोचते हैं कि कुछ आर्थिक जरूरतें हैं इस परिवार में? God is telling, परमेश्वर कहते हैं I am sufficient. मैं पर्याप्त हूँ, I am El Shaddai. मैं एल शडाई हूँ, I will take care. मैं संभाल लूंगा सब कुछ। So what is required from your side? तुम्हारी ओर से किस बात की आवश्यकता है? Only one thing. सिर्फ एक बात, You have to start believing God. तुम्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना शुरू करना है। The main problem with this, we call ourselves believer, but majority of the times we don't believe God. और मुख्य समस्या ये है कि हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन काफी समय हमारे अंदर वह विश्वास नहीं होता। Some preachers were telling like joke, और कुछ joke. और कुछ प्रचारक ऐसे एक जोक बता रहे थे। In India, भारत में it is not one Thomas, there is many Thomas. एक थोमा नहीं है, लेकिन बहुत से थोमा हैं। Why? क्यों? They were saying like many people are doubting God. बहुत से लोग परमेश्वर पर संदेह करते हैं। Nobody gives a confident reply. और कोई भी विश्वास से जवाब नहीं दे पाता। Will you come? क्या तुम आओगे? I'm thinking मैं सोच रहा हूँ something will happen. कुछ होगा। Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। You should be path makers, और path finders. तुम्हें ऐसे बनना है जो मार्गों को बनाए या मार्गों की खोजी हो सके। God is leading us, we should find the way. और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें मार्ग को ढूंढ लेना है। We are not people who are following, somebody has put a path and we are going to follow that. ऐसा नहीं किसी ने मार्ग डाला बस हमें उस पर ऐसे ही आंखें बंद करके चलना है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर our God is leading us. हमारे परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। We have to reach to the areas where the gospel has not gone. जहाँ जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा, हमें वहाँ पर जाना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So Colossians says Jesus Christ is the express image of the Son of the invisible God. और कुलुसियों का 1:15 में यूं लिखा है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। So how we can see that? और हम उसे कैसे देख सकते हैं? See God through His creation. उनकी सृष्टि के द्वारा सृष्टिकर्ता को देखें। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now the God of Abraham has the ability to appear to us. अब्राहम का परमेश्वर आपके सामने प्रकट होने की क्षमता रखता है, Like a man. एक मनुष्य के रूप में। So when
Abraham was sitting under the trees of Mamre, और जब अब्राहम उन वृक्षों के नीचे बैठे थे मामरे में, our Lord Yeshua HaMashiach हमारे प्रभु यीशुआ हा मसीहा straight walked and came to him. और सीधा चलकर उनके पास आए। Now you will be asking a question. अभी आप एक सवाल पूछ सकते हैं, No, the Bible says 3 people came, नहीं बाइबल में तो लिखा है कि 3 मनुष्य आए थे, but you are telling 1 person came. लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एक आया था। Now you have to understand something very clearly आपको here. एक बात बहुत ही स्पष्ट समझनी है, You have to read chapter 18 verse 1 and 2 once again. और आपको 18 का 1 और 2 पढ़ना है। And when you read 18 1 and 2, और जब आप उत्पत्ति का 18 1 और 2 पढ़ते हैं, you will understand what is Abraham saying. आप समझ पाएंगे कि अब्राहम क्या कह रहे हैं। Please read. अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु। 1 minute. Abraham is coming and falling at the feet, and what is he saying? और अब्राहम आकर उनके चरणों में दंडवत होकर क्या कहते हैं? हे प्रभु. हे प्रभु। Now this is singular or plural, I want to know from अभी you. ये एक वचन है या बहुवचन है? Please tell me this is singular or plural. एक वचन। Ekvachan. How do you say hey Prabhu in plural? Somebody who knows Hindi, please tell me how do you say hey Prabhu in plural? और Who बहुवचन can में say? कैसा कहते हैं? हे प्रभु। ओडिया में हे प्रभु माने और हिंदी में हे प्रभु हो। Now check your Bible. Thank you so much for both of you. Check your Bible. It says hey Prabhu or hey Prabhu ho. अभी अपनी बाइबल को आप जांच करें, वहाँ पर क्या लिखा है? हे प्रभुओं या हे प्रभु। It says hey Prabhu. वहाँ पर लिखा है हे प्रभु। 3 people came. 3 लोग आए। How can Abraham say hey Prabhu? कैसे अब्राहम कह सकते हैं हे प्रभु? Why he said hey Prabhu? क्यों कहा हे प्रभु? In singular. एक वचन में, Because Abraham knows. क्योंकि अब्राहम जानते हैं Shema Israel Adonai Elohino Adonai Echad. शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एहाद। He is one God. वह एक परमेश्वर हैं। Abraham knows that. अब्राहम उस बात को जानते हैं। 3 people came. 3 लोग आए। So when he is lifting up his eyes and seeing, इसलिए जब आप अपने आंखों को उठाकर देखते हैं, he is seeing Father, Son and Holy Spirit. वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देख पाते हैं। Who are these 3 people? कौन है ये 3 लोग? They are same people. वही एक ही है वो। He is one God. एक परमेश्वर हैं। What do we learn from El Shaddai? और एल शडाई से हम क्या सीखते हैं? He is one God. वह एक परमेश्वर हैं। There is no need for us to ask different people. हमें दूसरे अलग अलग लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं। Now what our people are doing? हमारे लोग क्या करते हैं? They keep saying I went to heaven and came and doing something here there and saying I saw God. ये कहते कि मैं स्वर्ग गया था, मैंने वहां परमेश्वर को देखा, मैं वापस लौटा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, our God can reveal himself. हमारे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। At the same time, don't believe all the people who are saying I saw God. और ऐसे भी सब लोगों पर विश्वास मत करो जो कहते हैं मैंने परमेश्वर को देखा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God showed up himself to Abraham. परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम पर प्रकट किया। Before that itself, he showed himself to somebody. उसके पहले उन्होंने अपने आप को किसी पर प्रकट किया। During the cool of the day, और he was walking. दिन के ठंडक के समय वह चलते थे। Genesis chapter 3. और उत्पत्ति का 3। I want the verse from somebody
during the cool of the day, he was walking and coming. 3:8, Genesis chapter 3 verse 8. तब